So, good morning, everyone. This is Dr. Aisha Butalia, and I welcome you all to the lecture series of research paper writing. Um, just now, we just discussed about what is design thinking. I give you an assignment to put your views on what is design thinking and what are the benefits of design thinking. Since it's a lecture series of research paper writing, okay, finally, we will land up to how design thinking, what is the importance of research paper writing. And we start with design thinking because uh, you have already learned design thinking, so you're not well versed with the research paper writing, but design thinking you already know. So we will just have a recap, and finally we will land to how design thinking is related to research paper writing. So, in this way, finally, your first objective would be solved. Because unless and until you understand the importance, okay, it doesn't fascinate you to do that particular, study. And I don't want to directly enforce you for research paper writing, but to go with the flow, what already you have understood, and it's a very important subject which you have already learned, design thinking. So I have a lot of messages which are coming up. Would just like to read few because they're really really fascinating, and it obviously it aligns with the definition which is on screen. Okay, so uh, Astha, she mentioned design thinking is a basically problem solving approach in a different perspectives, and the benefit she has mentioned is problem solving skills. Yes, very good. When you go through all these phases, empathize, define, ideate, prototype, test. Okay, if you have not studied this subject, maybe somebody in the audience, just let me know. I'll share in the description box my own YouTube video on design thinking and its phases. But right now we are in the understanding that all of you know these five phases of design. So empathize, you understand the users. Very very important. अगर आप कोई चीज कोई रिसर्च कर रहे हो और आपके पास कोई यूजर ही नहीं है, उनको फैसिनेट ही नहीं कर रहा है, तो क्या फायदा ऐसा प्रोडक्ट बना के, रिसर्च पेपर लिख के, जब कोई रीड ही नहीं करना चाहता तो आपको यू हैव टू अंडरस्टैंड कि लोगों के प्रॉब्लम्स क्या हैं। वो प्रॉब्लम्स को समझ के आप एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और आप उस पे रिसर्च पेपर लिख के आप अपने नाम से यू कैन शो दैट कंट्रीब्यूशन टू द एंटायर वर्ल्ड। ओके, सो यू डिफाइन इज दैट यू फ्रेम द कोर प्रॉब्लम क्लियरली। आपका पेपर लोग कब पढ़ेंगे? जब आपके कंसेप्ट खुद के क्लियर है। आपका पेपर अगर रीड करते वक्त काफी एम्बिगिटी लगा, तो वो इंसान के प्रॉब्लम को नहीं, उसको और कंफ्यूज स्टेट में लेके जाएगा, तो दिस पर्पस विल नॉट सॉल्व। Third phase is ideate. So you brainstorm creative ideas and potential solutions. क्योंकि जब आप कोई किसी का प्रॉब्लम समझते हो तो उसके बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं। आप सारे सॉल्यूशंस को समझने की कोशिश करो, दैट इज ब्रेनस्टॉर्मिंग। बहुत सारे अलग अलग क्रिएटिव आइडियाज, यू टेक इंटरव्यूज, यू टेक फीडबैक्स, यू डू लिटरेचर सर्वे, एंड फाइनली यू लैंड अप टू सम पोटेंशियल सॉल्यूशंस। तो इससे क्या होगा कि आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी, आपकी थॉट प्रोसेस और ज्यादा रिफाइन होगी। With this third phase, prototype, build quick small scale versions of a product or concept. हम जिंदगी भर सिर्फ चर्निंग नहीं करेंगे, वी नीड टू कम टू सम कॉन्क्रीट सोल्यूशन, राइट? तो वो कॉन्क्रीट सोल्यूशन एक विजुअल फॉर्मेट में आपको देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, हम कोई बिल्डिंग बनाने की सोच रहे, आर्किटेक्ट, तो पहले वो उसकी 2D ड्राइंग बनाएगा, फिर उसका 3D मॉडल बनाएगा, प्रोटोटाइप बनाएगा। इट विल आस्क फॉर इन्वेस्टर्स, तो इन्वेस्टर पूरी बिल्डिंग बनाने के बाद नहीं फाइंड आउट करेगा, वो पहले 2D और 3D डिजाइन से, प्रोटोटाइप से, इट विल ट्राई टू मेक द इन्वेस्टर्स अंडरस्टैंड और इवन द क्लाइंट्स अंडरस्टैंड, टेक द मनी, एंड देन invest that money in the construction. So prototype is, that's why important. And of course finally you need to try out the solutions and gather feedback and refine. ठीक है, तो फाइनली आपको लाइव जाने से पहले सारे सॉल्यूशंस को टेस्ट करना, ट्रायल पे करना पड़ेगा। तो आप कोई डेटा सेट, डमी डेटा सेट पे ट्रायल करो। एंड देन फाइनली व्हेन यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट द रिजल्ट्स,
and the bugs which you can solve, then you can launch the product. एंड दिस जरूरी नहीं कि एक बार प्रोडक्ट लॉन्च हो जाए तो उसकी टेस्टिंग खत्म हो जाती है. हम कंटिन्यूसली कस्टमर से फीडबैक लेते रहते हैं और हमारी रिफाइनमेंट ऑफ द प्रोडक्ट, जैसे अभी पिछले सेशन में वी टॉकिंग अबाउट व्हाट्सएप. व्हाट्सएप इज अ फुल फ्लैश प्रोडक्ट यूज्ड बाय लॉट ऑफ पीपल. फिर भी हमें कई बार लगता है व्हाट्सएप में ये होता तो कितना अच्छा होता, ये होता तो कितना अच्छा होता. ये जो आप ये होता कितना अच्छा होता है, ये आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट बन सकता है ना. तो आप इसको खुद टेक्नोलॉजी वाइज, ठीक है, मे बी नॉट व्हाट्सएप, मे बी अनदर एरिया वेर यू हैव अ कंट्रोल ऑफ द टेक्नोलॉजी. एंड हो सकता है जो आप ये बोल रहे हैं ना, ये हो सकता है ये आपका फीडबैक व्हाट्सएप के पास जाएगा. मे बी 6 मंथ्स में व्हाट्सएप विल गिव यू दैट फीचर, मे बी व्हाट्सएप ये करता भी है. ठीक है. सो दैट इज वाई दीज 5 phases ऑफ डिजाइन थिंकिंग इज इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट पर्सन ने लिखा है, आर्यन ने, डिजाइन थिंकिंग emphasize define, okay, 5 phases. Ishwari has written a creative user focused approach to solve problems through empathy, ideation, and rapid testing. Very good. Short benefit, she has mentioned user focused, solve real needs, creative, sparks fresh ideas, collaborative, combines diverse minds, effective, saves time, and quick testing. And of course, low risk. Very good. कुशाल लिखते हैं, design thinking means solve problems by thinking about people really need, coming up with ideas, trying them, and make them together. Good thought. Rohan adds to the point that design thinking is an approach to problem solving that emphasizes on understanding user needs and generating innovative solutions. Yes, it's short but very precise answer. Well done. प्रेम लिखते हैं, design thinking online means solving digital problems with empathy, creative, and testing. Okay, so Prem, you have introduced something new called as online design thinking. It's a great idea. You can freeze this as a problem statement for your next research paper, Prem. And the benefits you have mentioned is quick problem solving, creative and fresh ideas, improves teamwork. Correct. Abhinav adds design thinking as solving problems by understanding people's needs and creating smart, simple solutions. So, Abhinav, you can have your problem statement as smart design thinking. Design thinking is a common term. You can add it as smart. तो ये भी आपका एक problem statement हो सकता है. Okay, Siddhi, she has a different answer. To put your feet into someone else's shoes. Wow. Siddhi, are you there online? Can you just share your thought about this? It's really fascinating, huh? To put your feet in someone else's shoes. I think you mean that कई बार that's called actually empathize, right? हम किसी और का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए पहले उसके जगह पे रह के वो प्रॉब्लम को थोड़ी देर के लिए महसूस करेंगे. I think that's what she means. And the benefits is improve connections and boosts engagement. Now ये जो engagement word है ये इसीलिए जरूरी है कि किसी भी चीज को क्रिएटिविटी और आउटपुट लाने के लिए उस पे कंटिन्यूसली काम करना बहुत जरूरी है. आप सडनली एक दिन यू कैन नॉट पॉप अप विद समथिंग ग्रेट, राइट? है ना, यूरेका वाज समथिंग, सम ग्रेट साइंटिस्ट सेज, आई थिंक यू नो इट. वो यूरेका उसके मुंह से कब निकला? व्हेन ही वाज कंटिन्यूसली थिंकिंग. आई थिंक व्हेन ही वाज बेदिंग एट दैट टाइम ही सेड यूरेका, क्योंकि वो he was thinking about that same issue even in dreams, even in while sleeping, eating, bathing, whatever it is. Correct. Okay, so happy to see a lot of other viewpoints. So coming to the next concise way, I've just tried to freeze the benefits of design thinking. So centered keeps real user needs at the heart of the solutions. Okay. तो आप यूजर सेंटर्ड रहते हो, क्योंकि अगर आप यूजर सेंटर्ड नहीं रहोगे तो क्या कौन आपको सुनने वाला है? ठीक है. इफ यू वांट टू हैव अ फ्रेंड, अगर आप उसको सुनोगे नहीं, समझोगे नहीं, सो वो फ्रेंड आपका ज्यादा टाइम तक नहीं रहेगा. ओके. हाउएवर गुड पर्सन यू आर, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड एट द हार्ट ऑफ द सोल्यूशन. कई बार आप सोल्यूशन तो प्रोवाइड कर लेते हो, लेकिन आपके पास कॉम्पिटिटर्स होते हैं जिन्होंने दूसरों को समझ के वो एप्लीकेशन बनाए. तो कौन सा अच्छा रहेगा? जो सिर्फ एक सोल्यूशन है, या इट हैज अ मोर कनेक्शन टुवर्ड्स यूजिंग दैट एप्लीकेशन? ऑफ कोर्स. सो यूजर सेंटर encourages creativity.
promotes idea generation through brainstorming and lateral thinking. Okay, that's we already discussed. Reduce risk of failure. ओके तो अगर आप प्रोटोटाइपिंग अर्ली कर लोगे, क्योंकि आपका एक फेज है प्रोटोटाइप, अगर आप प्रोटोटाइपिंग कर लोगे, फॉर एग्जांपल अभी मैंने आपको बिल्डिंग का एग्जांपल बनाया, आप पूरी बिल्डिंग खड़ी करने के बाद आपको पता चलेगा अरे ये तो पूरा स्ट्रक्चर में ये फ्लॉ आ गई है, अब तो मुझे पूरी बिल्डिंग का डिजाइन चेंज करना पड़ेगा, ये इतना बड़ा डिफेक्ट अगर आपको पता चल गया बनाने के बाद, तो क्या आप पूरे बिल्डिंग को वापस डिमोलिश करोगे? Not possible. A lot of investments have been done. So prototype can help you with the embracing and understanding the failures. Okay, और आप उसको वहां पे ठीक कर सकते हैं. And that is called innovation, right? Innovation, why we call it innovation? Because and innovation का background क्या है? Research. Innovation is something new. लेकिन समथिंग न्यू बनाने के लिए पहले आपको क्या क्या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, उसके फ्लॉज, उसके एडवांटेजेस, उसके लूपहोल्स, वो सब समझना पड़ेगा. सो एनी इनोवेशन कैन नॉट गो विदाउट रिसर्च एंड डिजाइन थिंकिंग. ओके, सो एंड वन मोर, एनकरेजेस टीम वर्क, जैसे आप सब ने कहा अक्रॉस द डोमेन, क्योंकि क्रॉस क्रॉस आपको प्लेटफॉर्म करना है, इंटरडिसिप्लिनरी करना है. जो सिर्फ बिल्डिंग बना रहा है उसको सिर्फ सीमेंट का आइडिया होगा तो चलेगा क्या? उसको बहुत सारे चीजों के अलग अलग एस्पेक्ट्स के आइडियाज चाहिए, है ना. उसको लिफ्ट, उसमें लिफ्ट बिठानी है वहां पे, उसको तो लिफ्ट का भी उसको आइडिया चाहिए, लेकिन वो क्या एवरीथिंग कैन ही डिजाइन? he is not expert in every aspect required for a building development, so he will be having collaborators, he will be, having different type of experts in his board of directors, and that's what collaboration is. आप सीएससी के स्टूडेंट्स हो, ठीक है, लेकिन अगर आपको एक रोबोट बनाना है तो आपको मैकेनिकल इंजीनियर्स के साथ कोलैबोरेट करना ही पड़ेगा, है ना. तो इफ सपोज सीएससी स्पेशली हैज टू कोलैबोरेट सम फ्रॉम एनी ऑफ द डिपार्टमेंट, क्योंकि सिर्फ कंप्यूटर पे क्या करोगे, कंप्यूटर भी किसी एप्लीकेशन पे बनाओगे. इफ यू आर गोइंग टू क्रिएट समथिंग फॉर हेल्थ तो आपको डॉक्टर्स से कनेक्ट करना ही पड़ेगा, समथिंग लाइक दैट. So you have to go to the core of the domain knowledge with the help of collaborators. Okay. So now the main point, and which is the part of the objective कि why research paper writing. तो डिजाइन थिंकिंग के इतने बेनिफिट्स हमने देख लिए, आपने तो ऑलरेडी ये सब्जेक्ट पढ़ के यू माइट हैव फॉर्मुलेटेड सम प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स. अब इसका रिलेशन डिजाइन पेपर से कैसे है कि डिजाइन थिंकिंग एंड रिसर्च पेपर माइट seem different, but they are deeply connected, especially in applied problem solving approach. तो एक्चुअली नाम अलग है लेकिन पर्पस सेम ही है. सिर्फ क्या है कि रिसर्च पेपर राइटिंग एक डॉक्यूमेंट की तरह है जिसका एक फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट को फिल करने के लिए आपको डिजाइन थिंकिंग यूज करना ही पड़ेगा. तो डिजाइन थिंकिंग एक प्रोसेस है, वेरएज रिसर्च पेपर एक डॉक्यूमेंट है. और रिसर्च राइटिंग प्रोसेस इज एब्सोल्युटली, ट्रस्ट मी, सेम एज व्हाट इज ऑफ डिजाइन थिंकिंग. ठीक है, तो काफी कोरिलेशन है, यहाँ पे मेंशन भी किया है, इट इज डीपली कनेक्टेड. कैसे? लेट्स गो थ्रू इट. सो आपका एम्फसाइज या एम्पथाइज ये आपका फर्स्ट फेज है, करेक्ट. सो दीज आर द डिफरेंट 5 phases mentioned over on this left column. Then research writing component. तो रिसर्च राइटिंग के ये सब कंपोनेंट्स है. यू कैन गो थ्रू द लेक्चर सीरीज. आगे जो हमारी लेक्चर सीरीज होने वाली है उस पे हम एक एक कंपोनेंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं इन डिटेल. ऑलरेडी देर आर 5 to 7 लेक्चर रिकॉर्डिंग्स आई हैव शेयर्ड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. उसमें यू विल बी अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज द impact of research, what is the impact of research paper writing, how to formulate a problem statement using AI, है ना, what is the importance of mini projects, major projects and so on. वो सारे लेक्चर सीरीज करने के बाद में आपको वी आर गोइंग टू डिस्कस द डिफरेंट स्ट्रक्चर. तो डिजाइन थिंकिंग के स्ट्रक्चर तो आपको मालूम है, इसका सेम स्ट्रक्चर इज रिलेटेड टू रिसर्च पेपर राइटिंग. सो इट इज डीपली कनेक्टेड, हर चीज का एक रिसर्च पेपर राइटिंग कंपोनेंट है. अब ये आपको तभी समझेगा जब हम स्ट्रक्चर ऑफ द रिसर्च पेपर आगे डिस्कस करेंगे. ओके, सो नाउ लेट इट मेक शॉर्ट टू एक्चुअली अंडरस्टैंड कि ये दोनों रिलेटेड है, करेक्ट. सो क्विक, ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू गो दिस इन डिटेल, बट जस्ट अ क्विक हियर कि जो आप इंट्रोडक्शन सेक्शन लिखते हैं आपका रिसर्च राइटिंग पेपर में, या आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिफाइन करते हैं, दैट इज नथिंग बट एम्फसाइज. सो यू अंडरस्टैंड द रिसर्च प्रॉब्लम,
ठीक है, फ्रॉम यूजर्स पर्सपेक्टिव, एंड आप उसको रियल वर्ल्ड में प्रोजेक्ट कर रहे हो एज योर कंट्रीब्यूशन थ्रू रिसर्च पेपर, और उसका जो सेक्शन कनेक्टेड है वो इंट्रोडक्शन एंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट कनेक्ट है. In the next session, I will show you my own research paper which has published recently. Okay, उसका पूरा ढांचा मैं आपको बताऊंगी जिसमें ये सारे कंपोनेंट्स आपको दिखाई देंगे उस केस पेपर के थ्रू. सो डिफाइन में आपके रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स एंड क्वेश्चंस आ जाएंगे आपके रिसर्च पेपर के. सो यू प्रिसाइसली व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यू आर गोइंग टू आर्टिकुलेट द प्रॉब्लम एंड फ्रेम रिसर्च क्वेश्चंस. रिसर्च क्वेश्चंस मतलब ये क्या क्वेश्चंस है जो मुझे आइडेंटिफाई आप करेंगे, जिसके जिसके आंसर्स मुझे ढूंढने हैं. ठीक है, एंड हाउ यू आर गोइंग टू identify the solutions with the help of different methodologies and experimentation. So that comes under ideate. करेक्ट. एक बार आपके क्वेश्चंस तैयार हो गए तो आपको सॉल्यूशंस निकालने. सॉल्यूशंस के लिए आप क्या क्या मेथड्स, एल्गोरिथम्स, टूल, टेक्निक्स यूज करने वाले हैं, दैट कम्स अंडर आइडिएट. ओके, सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यू आर गोइंग टू ब्रेनस्टॉर्म. जो भी आपने डिजाइन थिंकिंग के आइडिएट फेज में पढ़ा था, सेम यू आर गोइंग टू अप्लाई इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन, राइटिंग दिस पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द रिसर्च पेपर. प्रोटोटाइप इज नथिंग बट द एक्सपेरिमेंटेशन. तो वो सारे एक्सपेरिमेंट्स जो आपको प्रोटोटाइप पे या वर्किंग मॉडल पे आपको करने हैं यूजिंग सम डेटा सेट्स, दैट इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंटेशन एंड रिजल्ट सेक्शन इन योर रिसर्च पेपर राइटिंग. तो आपको वो सब शोकेस करना है कि आपने कौन सा डेटा सेट यूज किया, आप कौन से मॉडल्स आपने यूज किए, कौन से मेथोलॉजीज यूज किए, कौन से अच्छे थे, किसमें आपने इम्प्रोवाइज किया, एंड आपके इम्प्रोवाइज वर्जन में क्या रिजल्ट आया, क्या एक्यूरेसी बढ़ी या कम हुई. ये सारा आपके इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंटेशन रिजल्ट सेक्शन में पेपर में आएगा, एंड दैट यू कैन रिलेट इट विद द प्रोटोटाइप फेज. ओके, नाउ ये जो है मेथडोलॉजीज के बाद ये आपका प्रपोज सोल्यूशन है, दैट इज द प्रोटोटाइप. एंड जो आपने एक्सपेरिमेंटेशन रिजल्ट्स किया एंड डिस्कशन व इवेल्युएशन आपके टेस्ट फेज में आएगा. Okay, so I think through this is quite clear that what is the correlation between design thinking and the research writing. अगर आपको डिजाइन थिंकिंग नहीं आता है तो आप वो यूट्यूब चैनल पे सारे फेजेस रिवाइज कर लीजिए. और रिसर्च पेपर राइटिंग कंपोनेंट हमारे आगे के लेक्चर सीरीज हैं जिसमें हम ये सारा स्ट्रक्चर डिटेल में पढ़ने वाले हैं. दैट्स आवर अपकमिंग नेक्स्ट वीक पर्पस. हम एक एक सेक्शन खुद बनाएंगे एंड विल प्रोड्यूस अ रिसर्च पेपर. Just if the time permits, we'll end with this, the emotion recognition as a case study. तो empathize में अगर आप emotion recognition आपका problem statement है तो आप क्या करेंगे, you will interview the users with the emotion disorders to understand the gaps between the existing systems. तो जितने भी systems है जो emotions detect करते हैं, आप एक interviews लेंगे कि already जो existing applications है उनके क्या disorders हैं, कुछ gaps है. वो जो gaps आपको मिलेंगे ना, that becomes your new problem statements actually. ओके, एंड एम्पथाइज क्यों, क्योंकि आप यूजर से कनेक्ट करके वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स ले रहे हो. मतलब कहीं ना कहीं आपको ये पता चल रहा है कि जो भी आप आगे सॉल्व करने वाले हो उसके लिए आपको ऑलरेडी यूजर्स हैं और उनके वो प्रॉब्लम से रिलेट करता है. ठीक है, इन डिफाइंड पार्ट करंट systems misclassify subtle emotions causing emotional disconnect. ठीक है, तो ये आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट तैयार हो गया. देखो, अगर किसी को इस पे काम करना है तो ऑलरेडी मैंने आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे दिया है. ठीक है, तो अभी जो करंट सिस्टम है ये मिस क्लासिफाई कर रहे हैं सटल इमोशंस को. सटल मतलब वो सैड, हैप्पी, डिस्गस्ट, फियर ये तो कर रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो पर्सन रो रहा है वो जरूरी नहीं कि वो दुखी है. वो आंख के आंसू खुशी के भी हो सकते हैं. सो दीज आर कॉल्ड सटल इमोशंस. ओके, सो देर इज सम मिस क्लासिफिकेशन इन देयर. देन आइडिएट प्रपोज अ हाइब्रिड. मैंने आपको ये भी बताया कि मशीन लर्निंग के ये दो मॉडल्स आप यूज कर सकते हो टू कैप्चर टेम्पोरल इमोशनल क्यूज. टेम्पोरल मतलब जो टेम्पररी होते हैं. कभी कभी कोई बहुत सैड होता है, उसको सडनली कोई फोन कॉल आता है, वो खुशी में होता है, स्टार्ट्स लाफिंग. कई बार कोई इंसान बहुत ही खुश होता है, उसको सडनली किसी के डेथ का फोन आ गया. सो टेम्पोरल मीन्स दैट्स द डिफरेंस बिटवीन द इमोशन स्टेट्स. ओके, सो आई हैव जस्ट ट्राइड टू गिव यू अ केस स्टडी विथ दीज ऑल टाइप्स. नाउ प्रोटोटाइप में आपको क्या करना है, यू हैव टू बिल्ड एंड ट्रेन अ मॉडल. ओके, ऑन FER 2013 ये एक मॉडल है, आप रिसर्च पेपर इसका ढूंढ सकते हैं गूगल पे. एंड कस्टम डेटा सेट. ठीक है, क्योंकि आपको ट्रेनिंग तो करनी पड़ेगी. एक ढांचा बनाने के लिए पहले आपको डेटा सेट सेटिंग करना पड़ेगा. वो लोग क्या करते हैं, पहले मॉडल बना के फिर
डेटा सेट को ट्रेन करते हैं, नहीं। अगर आप मशीन लर्निंग के स्टूडेंट हैं तो पहले हमें डेटा सेट को लेबल करना है, उसमें से पैटर्न्स निकालने हैं और उस पैटर्न से हमें अल्गोरिदम निकालना है, और फिर बाद में वापस हमें अनलेबल्ड डेटा पे उसको टेस्ट करना है। ठीक है। सो फाइनली कम्स द टेस्ट फेज, जिसपे हम अगेन रियल वर्ल्ड यूजर्स पे हम वो अपना एक्सपेरिमेंटेशन फ्लो कर सकते हैं। So I hope you understand the objective of this particular session. Okay, why research paper writing is important, what is design thinking, benefits of design thinking, relation of paper writing and design thinking, and finally, I have also given you a formulation of all this with the help of design thinking with the case study emotion recognition. अब आपका होमवर्क क्या रहेगा? जब आप आगे की सीरीज रिसर्च पेपर की पढ़ेंगे तो आपको यही ऐसा कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको डिजाइन करना है और आपको पेपर राइटिंग में उसको फॉर्मुलेट करना है। सो योर होमवर्क इज, प्लीज ट्राई टू आइडेंटिफाई ऐसा कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट यूजिंग योर डिजाइन थिंकिंग अप्रोचेस जो आप अभी तक ऑलरेडी पिछले सेमेस्टर में पढ़ चुके। So thank you very much for your patience listening. I will end this recording here and look forward that you join back the session, with your problem statements in couple of time. So this is Dr. Aisha Butalia signing off from this session.